Our theme today is Born to Lead, Unleash Your Hidden Power. Today is not just about celebration, it's about recognition, empowerment, and the realization that every woman carries an untapped reservoir of leadership within her. So, now I would like to introduce myself. My name is Muhammad Said Khan. I am program lead and chief social media at Easy Learning Online Institute. Easy Learning on Institute is founded by Miss Muniza Qureshi, our CEO. It's an online platform which provides various courses regarding leadership development and professional development. The core vision of Easy Learning Online Institute is provide quality education, practical skills, and professional guidance, especially for young people and women who aspire to achieve financial independence and personal growth. By combining modern learning methods with career-focused training, the institute aims to prepare students for real-world challenges and professional success. Mainly, this institute bring the gap fulfill which is today's necessity. So now for the welcoming remarks, I would like to invite the visionary behind this platform, Miss Munida Qureshi, CEO of Easy Learning Institute, for her welcoming remarks. Over to you, ma'am, Miss Munida Qureshi. Thank you so much, Saeed, for inviting me. Assalamu alaikum, everyone. A very warm welcome to all our respected guests, inspiring speakers, collaborative partners, and all amazing participants who have joined us today. It's literally, truly means a lot to see such a wonderful community gather together for a meaningful cause. सब मौजूद हैं यहाँ पर इट्स द सेशन गोइंग टू बी वेरी इनक्रेडिबल इंशाल्लाह अगर आप यहाँ पर मौजूद है तो रिएक्ट से मुझे पता लगना चाहिए यू आर देयर एंड प्रेजेंट wonderful audience. Today we are celebrating International Women Day Series Day 2 and the theme of today's session is Born to Lead, Unleash Your Hidden Power. What is the meaning of this? This theme carries a very powerful message. Every woman has strength, talent and leadership inside her. Sometimes that power just needed the right platform, the right encouragement, and the right choices, right voices to remain her to what is she is capable of the achieving. This platform provided you a very incredible guest speaker today, mashallah, and they have doing very incredible things in their insights and in their fields. And at the Easy Learning Online Institute, we strongly believe that education is not only about learning skills, but also about building confidence, leadership, and purpose. And through initiatives like this series, our aim is to bring together inspiring leaders, educators, and professionals who can share their journey and guide the next generation. And we want every participant joining us today for leave this session with a strong belief. इंशाल्लाह आज आप सेशन से ना सिर्फ इंसाइट्स लेके जा रहे होंगे बल्कि अपने साथ एक बिलीव लेके जाएंगे अपने साथ एक रोड मैप लेके जाएंगे and I would like to take a moment to warmly welcome our Honorable Chief Guest, Professor Sahabzadi. It is a truly an honor to have you with us today, and your experience, your leadership, and incredibility inspiring. And we are grateful for the presence in this session. A very special warm welcome to our amazing guest speakers who have joined us today. Their valuable insights and experiences, Ms. Abira Karamatali, a psychologist, a youth leader, advocate who has worked with the empowered more than 100 women leaders. And the next guest speaker we have is Ms. Aisha Mirza, a passionate voice of leadership and empowering young minds. And the next amazing speaker we have is Dr. Nurul N, CEO of Foundation of Nourish Women Health, and those work in contributing greatly towards women well-being and empowerment. And the another amazing speaker we have is Ms. Javeria Latif, a powerful public speaker who inspire audience through her words and experiences. We are truly honored to have such inspiring personalities with us today, and your stories, experiences, and guides will truly motivate us and many participants who are listening us today. I would like to sincerely appreciate our thankful to our collaborative partners supporting this initiative
and become a part of this amazing, powerful journey. Behind every successful program, there is always hard-working team and working quietly with dedication and passion. Today, I would like to especially like to acknowledge overall management team to their incredible efforts in organizing and management this event. The heartfelt appreciation to Muhammad Saeed, Muhammad Arsalan, Muhammad Akib, Aisha Ali Khan, Aisha Shohrab, Khatija Zahoor, and your dedication, teamwork, and commitment have played a very, very important role to making this event possible. And thank you so much to everyone to your hard work and support. And events like these, not just programs, these are the platform your ideas grow confidence, develop, and future leaders begins their journey. My hope is today to very simple and powerful that every participant listening us today realize that leadership is not limited to the title and positions. Leadership begins with a belief in yourself, with courage to speak, and with a willingness to create positive change. If even one participant could discover, even one participant could discover their hidden potential, gains confidence, and feels inspired to purpose their dreams, then our mission of the event will be fulfilled, inshallah. Once again, a warmly welcome all of you there, and thank you for being the part of this beautiful initiative. Let's make today's session inspiring, meaningful, and empowering for everyone. Thank you so much. Yes, Saeed, over to you. Thank you, ma'am, for your remarkable and valuable word. Now, I would like to invite our chief guest, Professor Zadi Khan, CEO of Sahiba Writing Squad. We are eager to hear your perspective on the global impact of women leadership and how your presence here can be valuable for the women and for the participant of this meeting. Over to you, ma'am Sahib Zadi Khan, Professor Sahib Zadi Khan, CEO of Sahiba Writing Squad. जी आकिब मैम को co-host कीजिए. Ma'am, are you available? Please unmute the ma'am. Assalamualaikum. Is my voice is audible to all of you? Yes, ma'am, you're Yes, audible. ma'am, you are audible. First of all, thank you so much to Muniza and the whole team of Easy Learning Institute. You people are doing a very great job, like in this age and with the journey of students. You people are continued the journey of leadership. So hats off to you for your remarkable efforts towards youth leadership. So, if I talk about myself, this is me, Professor Sabsadi, hailing from Khanewal, the CEO of Sahiba Writing Squad and founder of Vision of Women. So, when we talk about women, then definitely there is a story of struggle, a story of restlessness nights, a story of tears behind the smile. Like something that is truly incredible in front of people, but that is truly dejected in behind the doors or behind the scenes. So when we talk about women empowerment and about women growth, women prosperity, and women leadership, then there are lots of things to discuss. So first thing that women should do, being the women, is to rise, to shine, and then to lead. जब तक आप अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं रखते तब तक कोई भी आपके ऊपर यकीन नहीं रखता. Whenever you feel low, whenever you feel
like you are going to quit, whenever you feel like you are going to done and you are going to end up all the things, then that is the moment where you have to realize then why you started. You started with a powerful dream and with the strength of encouragement of your dreams, vision, and mission. So this is the point where we are going to rise ourselves. Like मेरा जो मानना है, being a woman, to empower other women, like those women who need or who are seeking for our empowerment to become empowered, is to rise first. ठीक है, राइज का क्या मतलब होता है? तलू होना। जिस तरह से सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब से निकलता है और इस तरह से निकलता है कि लोग जो है वो उसकी तरफ आंख उठा के उसको जो है वो आंख भर के देख नहीं सकते। तो जब एक वुमेन राइज होती है तो वो भी अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, अपनी ब्रेविटी, अपनी करेज, अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस से इसी तरह से राइज होती है कि कोई भी नेगेटिव आंख जो है वो उसकी तरफ उठ नहीं पाती। सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी राइज अवर सेल्फ। राइजिंग के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है? राइजिंग के अंदर दूसरा पॉइंट कि जब लोग आपको गिराने पे तुले हों एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग देयर, फिर भी आप वहां पे कायम दायम हैं, फिर भी आप लोग वहां पे मौजूद हैं, ठीक है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू क्विट। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ राइज। And the third point, where you are going to feel like your story is going to end, then that's the start of a new beginning. जब कभी भी आप लोगों को ये फील हो कि नहीं आगे मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं नहीं चल सकती, मैं शायद यहाँ पे रुक जाऊं, या फिर शायद मैं हौसला हार दूं, या शायद मेरी हिम्मत जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाए, तो वहां पे आप लोगों ने ये सोचना है कि दिस इज द पॉइंट आई एम गोइंग टू गेट रीबर्थ। यहाँ पे मेरी एक रीबर्थ हो रही है और मेरे अंदर से एक पावरफुल विमेन उठ रही है। यहाँ पे बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे हमारे माशरे के अंदर इस तरह के जो है ना वो चैलेंजेस आते हैं, इस तरह के बिहेवियर्स हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, इस तरह की सेटबैक्स आते हैं लाइक जो कि हमें बिल्कुल पुल बैक कर रहे होते हैं। तो एट दैट मोमेंट यू हैव टू करेज ऑल योर स्ट्रेंथ, उसको कलेक्ट करें अपनी सारी स्ट्रेंथ को and stand at your point because you are not wrong. When you are going to follow your Islam, when you are standing with the limitation of Islam, and when you are representing the core role model of Hazrat Khadija alayhi salam, then there is no need to step back, then there is no need to quit, then there is no need to step back. So this is your point where you are going to rise like a sun, कि उनकी जो है वो आंखें चुंधिया जाएं। उसके बाद आता है शाइन। ठीक है, जब आप उठेंगे इस लेवल पे, अपने आप को उस लेवल के ऊपर लेके आएंगे, तो जो आपकी शाइन है, जो आप एक चमकता दमकता हुआ सितारा बनेंगे, उन सारे अंधेरों को आपने अपने अंदर समेट के वहां से एक रोशनी निकालेंगे। अंधेरों से अंधेरे काटे नहीं जाते, अंधेरों को जो है वो उजाला काटता है। तो जब आप शाइनिंग की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली वो शाइन जो है वो आपको लीडर बनाएगी, वो आपको लीड करने की तरफ ले जाएगी, क्योंकि ये रोशनी फिर आप तक महदूद नहीं रहती, ये रोशनी फिर आप तक जो है वो लिमिटेड नहीं होती, वो सिर्फ आप अपने पर्सनल एंड के लिए यूज नहीं कर रहे होते और वो आप सेपरेट कर देते हैं। और जब आप अपनी वो रोशनी सेपरेट करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप एक लीडर बनते हैं, और फिर आपका जो सफर है, फिर आपकी जो जर्नी है वो लीडरशिप की तरफ जाती है। There are lots of battle that we have to fight. We have to fight like psychological battles we are facing, uh, religious fights we are facing like sometime for example अगर आपने जो है वो अबाया कैरी किया हुआ है और आपने स्कार्फ और नकाब कैरी किया हुआ है, और समटाइम आप फॉर एग्जांपल अपना अबाया उतार देते हैं लेकिन आपका नकाब और आपका स्कार्फ होता है, तो वो कहते हैं वो देखो जी, जो कल तक इसने ये पहना हुआ था अब ये पहन रही है। सो अपने आप को लाइक इन सारी चीजों से इतना ऊपर उठा लें कि लोग आपके ऊपर रश्क कर सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा डियर लेडीज, जो दूसरों के व्यू पॉइंट के ऊपर चलते हैं और हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि अच्छा आप मुझे बता दें मुझे क्या करना चाहिए, या आप मुझे बता दें मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही, या आप मुझे बता दें मुझे क्या वेयर करना चाहिए। इट्स यू
and you have to wear the confidence, you have to wear the dress, you have to wear the lipstick of your own favorite color. वो सारी चीजें आप डिसाइड करेंगे. That's not the society who is going to decide you or judge you with the remarks, negative remarks, like they're passing to you and you are acting upon on those remarks, like आप लोग रो रहे हो, आप लोग शटर हो रहे हो. There are zero sports sometimes in your life, but at that point that is your real trial. कि उस पॉइंट के ऊपर आप अपने आप को जीरो स्पोर्ट के ऊपर अपने आप को किस तरह से स्टैंड रखते हैं. ये जो लीडर का वर्ड है ना, ये लीडर का वर्ड ऐसा वर्ड है कि आप लोगों को एक समंदर जो है ना वो बना देता है, कि इसके अंदर आप लोग बहुत सारी चीजें दफन भी करते चले जाते हैं और अपनी मौज को रुकने भी नहीं देते, और वो भी बहती चली जाती है. तो ये वो चीज है, ये वो पैशन है, ये वो इंथुजियाज्म है, ये वो ताकत है, ये वो कॉन्फिडेंस है, ये वो ब्रेवरी है जो आप सबके अंदर होनी चाहिए. अगर आप अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखते हैं हजरत खतीजा की और हजरत आयशा की. लाइक हजरत खतीजा की अगर हम लोग स्टोरी सुने, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी. उसके बाद हजरत आयशा जो कि बहुत ही कम उम्र थी और उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, तो वहां पे देखें कि उनकी साबित कदमी कैसी है. सो एट एवरी point, whether you are in young age, in a very young age, and whether you are in teen years, or whether you are in 20s or 30s, at every step, this world, this universe demands you to be strong, demands you to be brave, demands you to be confident. So thank you so much. मेरा टाइम एंड तो नहीं हो गया? ये अभी स्टार्ट हुआ है. अगर स्टार्ट हुआ है तो मैं फर्दर इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ. Sure, ma'am, you may continue. All right, how much time I have? 2:40 पर आपका टाइम एंड होगा मैम. Oh, that's mean I have a very enough time, so I can start the things from the very start. जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूरोप बहुत ज्यादा जो है वो एम्पावर्ड है, खवातीन वहां पे बहुत ज्यादा लिबरल हैं. तो मैं वहां से एक स्टोरी शुरू करती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि वहां पे भी ये स्ट्रगल थी. ठीक है, अगर आप ये समझते हो आज इस जगह पे बैठ के कि स्ट्रगल सिर्फ हमारी स्ट्रगल है, ठीक है, यूरोप वाले तो बड़े मजे में हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. 90s से प्री 90s, लाइक 18th सेंचुरी आप लोग लगा लें, जब एक लड़की को लिखने का बहुत शौक था. जब वो लिखने लगी तो पता चला कि सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती. लाइक men can be the writer, men can be the politician, men can be the judge, men can be the senator, men can be the delegates, or men can be the teacher and trainer as well. Like women जो है वो, उसको इस चीज का भी राइट नहीं था, और उसको लिखने का बहुत शौक था. उसने अपनी पहली बुक लिखी. आप में से किसी को उसका नाम आता है? यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है वो इंगेजिंग बनाना चाहूंगी, या फिर आप लोगों ने इसको वो म्यूट किया हुआ है? मैं जब भी सेशन दूं या इस तरह की डिस्कशन करूं तो मैं बहुत इंटरेक्टिव बनाती हूँ, ताकि लोगों का नॉलेज और मुझे उनका लेवल जो है वो उस चीज के हवाले से पता चले. एनीवन कैन गेस Yes, sure. सब कौन सा chat ओ नॉवल था जो मैम, उसने सबसे पहले मैम लिखा था? मैं अलाउ कर रहा हूँ चैट बॉक्स, सब अपनी ओपिनियन शेयर. और एट एनीवन वांना टेल कि जो एक इंग्लिश विमेन थी और उसने अपना एक वर्क लिखा था और फिर उसने उसको पब्लिश करवाया था, और एक लड़के के नाम से पब्लिश करवाया था, क्योंकि डर था कि उसका वर्क जो है वो पब्लिश नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक खातून है. तो उसने अपना नाम जो है वो चेंज किया, और जब उसने वो बुक पब्लिश करवा दी, लोगों ने वो पढ़ी, लोगों तक वो पहुंच गई, तो वो सारे इतना इंस्पायर्ड हुए. उन्होंने कहा कि हमें इस आदमी से मिलना है. एंड शी वाज स्केयर्ड एट दैट मोमेंट कि आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ विमेन जिसने ये बुक लिखी है. तो फिर दुनिया के सामने लोगों को पता चला था कि ये खातून है जिसने जो है वो बुक लिखी है, और वो मर्द नहीं बल्कि औरत थी. एनीवन कैन गेस? इंग्लिश लिटरेचर वाले नहीं है यहाँ पे? बीजेडी वाले भी नहीं है? कोरियन टोलेडो? नो. एनीवन एल्स? थोड़ा सा हिंट दूं मैं? जे से बनता है वो नाम.
ऑल राइट, उसका असल नाम मैरी एन एवंस था और जॉर्ज इलियट के नाम से उसने अपनी बुक पब्लिश करवाई थी। हाँ जी, इंग्लिश वालों याद आया किसी को? और लेट फर्दर मैंने ये कंफर्म कर दिया। तो वहां से ये जो मूवमेंट है, क्योंकि मोस्टली हम ये कहते हैं कि हमें जो पॉलिटिक्स है, रियासत है, उसका कॉन्सेप्ट हमें जो है वो यूनान वालों ने दिया है। और उसके बाद हम जी कहते हैं कि फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यूरोप ने दिया है, जिसकी वजह से वुमेन डे को जो है वो मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि ये अल्लाह माफ करे जो बहुत बुरी चीज है, या फिर जो है वो वुमेन मार्च, औरत मार्च। मैं भी आपको अगर रिसेंट अपना एक छोटी सी बात शेयर करूं, तो न्यूज़पेपर्स में मैं लिखा करती हूँ, तो मैंने एक दिन जो है ना वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेस्ड एक एक्सपो हुआ, इधर खानावाल में ही हुआ था। और उसको एचबीएल और बाकी स्टेट बैंक उन सब ने मिलकर जो है वो कंडक्ट करवाया था। तो उसके कुछ ग्लिम्पस थे, मैंने डिफरेंट स्टॉल्स विजिट किए फीमेल्स के, तो उसके ऊपर मैंने एक कॉलम लिखा। और मैं जिस तरह से बाकी सारे न्यूज़पेपर्स वालों को, मेरे पास न्यूज़पेपर्स वालों के नंबर जो है वो सेव थे, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है सबके ऊपर न्यूज़पेपर है। तो वो एक न्यूज़पेपर वाले को मैंने भेजा, तो उसका मुझे रिप्लाई आया कि हाँ, ये वही औरत मार्च है ना जिसको करते करते वो एक औरत थी वो हरा मौत मर गई। तो लिटरली लिटरली आई वाज शॉक्ड एट दैट मोमेंट। और तब मैं चलती हुई घर की तरफ आ रही थी अपनी जॉब से, तो मैंने ना उधर ही रास्ते में थी, मैं पैदल चल रही थी, तो मैंने उसको आंसर किया, मैंने उसको रिप्लाई किया। मैंने कहा कि आप शायद भूल गए हैं कि यहाँ पे जितने भी खवातीन हैं उन सब ने मुसलमानी लिबास पहना है, और मोस्ट ऑफ देम आर वेयरिंग अबायास, so they are carrying the legacy of being a Muslim, and they are carrying the legacy of Hazrat Khatija alayhi salam. तो मैंने तो उसको वो वहीं पे ही इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा शटअप कॉल दी। और एट द सेम टाइम द मेल कम्युनिटी जो कि वहां पे जिनको मैंने बाकियों को शेयर किया, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, वेरी अप्रिशिएटेड वर्क, वेरी अप्रिशिएटेड वर्क। सो देर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन योर लाइफ यू विल फेस बीइंग द विमेन। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। सोसाइटी जो है इट्स टू जजमेंटल, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, देन सोसाइटी इज टोटली जजमेंटल। वो आपको सिर्फ जज करने के लिए ही मिलेगी, ना आपको सपोर्ट करने के लिए मिलेगी। अभी आप मैसेज कर दो कि भाई मैंने आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है, एक अच्छे काम के लिए करनी है, लोगों को वोट्स देने हैं, उनको इनकरेज करना है, उनको एम्पावर करना है, तो जरा 5,000 तो निकालें। तो वो गए, आपको नजर ही नहीं आएंगे। बट वेन when we talk about the empowerment, the success, the equality, the justice in our limitations, like जो इस्लाम ने हमारे लिए वाज़े कर दी हैं, जो कि हमें जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं, जो कि हमें हजरत मरियम, हजरत खदीजा, हजरत आसिया इनसे मिली है, वो करेज, वो एसेट, वो विरासत हम आगे लेके चल रहे हैं with our नकाब, with our scarf, with our Muslim attire. So from this perspective, I always encourage all the women, and literally I encourage the male community as well, like you people are standing with your families. मुझे ये चीज इतनी इतनी आई कैची लगी व्हेन एवर आई विजिटेड द एक्सपोज कॉन्फ्रेंसेस। तो उनके हस्बैंड उनके साथ खड़े होकर पैकिंग में हेल्प करवा रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। सो दिस इज द माशरा, दिस इज द सोसाइटी इस्लाम इज एम्पलीफाइड फॉर अस, कि जो है वो दोनों ही एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। अगर जो है वो जन के बगैर, वजूद जन के बगैर कायनात का तसव्वुर जो है वो मुमकिन नहीं है, तो इसी तरह से मर्द के बगैर, आदम के बगैर भी कायनात का तसव्वुर जो है वो मुमकिन नहीं है। बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम व्हील। ठीक है, और उनमें से अगर एक व्हील भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो तो डेफिनेटली गाड़ी नहीं चलती। तो encouragement for male and female both community are very important, and definitely there are lots of things to do। ठीक है, कभी भी मैं आपको ये बताऊं, छोटी सी अचीवमेंट अचीव करने के बाद आप लोग खुद को ये मत कहें कि मैं बहुत बड़ी चीज बन गई हूँ। ठीक है, स्टे हम्बल एंड स्टे पॉजिटिव। कभी भी आपने ये देखा बिल्कुल है कि कामयाबी जो है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं रिलेट करूंगी आपसे दैट प्रोफेसर साहबजादी, मिस साहबजादी, her dedication to education, writing, leadership and inspired countless learners and professionals. Ma'am, we are so grateful for your presence and your time, and I respectfully uh,
again want to thank to ma'am. Thank you so much for the inspiring words and to be making our session so incredible. And now, looking forward, I would like to pleasure to invite the next respected guest speaker, Ms. Abira Karamat Ali. She is psychologist and lecturer, and she has been honored with a 100 Women Award 2025. And she is also a passionate youth leadership advocate working actively to guide and empower young leaders. We are delighted to have you, ma'am, with us today. Over to you, ma'am. Thank you, Mariza. Have a very great session ahead. I'm so grateful. Thank you so much, ma'am. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Walaikum salam. Am I audible, Manisa? Yes, yes, you are audible. Okay. कैसे हैं आप सब लोग? How's everything? The session seems to be going good. All good, ma'am. Please continue. Okay. Thank you for the wonderful introduction. Welcome, Manisa. My name is Abira Karamat, and I have done my master's in applied psychology. Apart from that, I have a couple of hobbies, which include baking and also reading like lots of books. So far, I've read over 120 books. अब जाके उस तरह से टाइम वगैरह नहीं मिलता, but okay, I'm just gonna get back to the क्या कहते हैं topic. So, most of the people in life actually expect कि जो leaders होते हैं या किसी leadership की position पे होते हैं, you need to have some sort of extraordinary power or quality. आप तभी जो है क्या कहते हैं, you're born a leader जिससे कहा जाता है ना, that's not the thing. You're actually not born a leader. You all have that potential in yourself, but what matters is how you guys come to identify it. अब यहाँ पे we almost have 55 participants, including me. Okay, so it's not okay whether you have the power to be a leader or not, because mostly I have worked with so many students. I've worked with over 200 to 300 students by now, and the kids these days have question कि हाउ टू बी अ लीडर, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हम लीडर हैं या नहीं है, या मतलब they're so lost about the entire thing. So the real question right now is have you guys discovered it or not? I have seen teenagers working so hard, and they have their own organizations at this point, like they're like 13 to 15 years old only. ठीक है, तो वही बात थी कि when you study psychology, it teaches you about self esteem, कि खुद ही क्या है, what's your self respect, आप अपने आप को किस potential तक रखते हैं, या कौन सा एक threshold है जहाँ पे आपने अपने आप को रखा हुआ है, and you don't underestimate yourself at all. So first thing is identity. ठीक है, mostly kids in Pakistan face this thing, identity crisis, कि उन्हें नहीं पता होता मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, मेरी likes क्या हैं, dislikes क्या हैं. The first thing is that a simple way of doing that, don't do something very heavy. Take a personality test on okay, yeah, sorry. You guys just can take a personality test on Google. गूगल है, चैट जीपीटी है, सारे ही यूज करते हैं, राइट? सो जस्ट गो ऑन टू गूगल, राइट पर्सनालिटी टेस्ट, तो आपके पास ऊपर एक 16 पर्सनालिटीज का क्वेश्चन आ जाएगा. तो जस्ट गो अहेड एंड फिल दैट, आपको वहां से अपनी पर्सनालिटी पता लग जाएगी. ट्राई टू जस्ट फिक्स इट या सॉल्व इट योरसेल्फ, डिस्पाइट योर फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ बैठ के ना करें, खुद से करें. ठीक है, आपको अपनी पर्सनालिटी पता लग जाएगी, आप मीडिएटर हैं. हमें क्या होता है, पर्सनालिटी जो है ना सिर्फ 3 टाइप्स की होती हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट. ठीक है, या तो हम बिल्कुल शाय हो जाएंगे, या हम बिल्कुल ओपन होते हैं, या हम नॉर्मल होते हैं. नहीं, देयर इज सो मच मोर ऑनेस्टली. सो ट्राई टू फिगर इट आउट. ओके, नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन समवन आस्क्स फॉर योर इंट्रोडक्शन, तो मेक श्योर टू टेल अबाउट योर हॉबीज. कि मेरी ये हॉबीज हैं, आई लाइक टू बेक, आई लाइक टू रीड. जैसे अब मैंने अपना, जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई, मैंने अपनी हॉबीज बताई. पीपल डोंट नो द हॉबीज. I bet there will be so many children among you people जिनको अपनी hobbies नहीं पता होंगी. If I ask you introduction, you would be like, बस हमें तो reels scroll करना अच्छा लगता है, हमें Instagram use करना चाहिए. Okay, that's like your activity in free time, but that is not you. तो जब तक आपको अपना नहीं पता लगे कि आप खुद कौन हो, you cannot discover your potential, you cannot discover कि how much capacity and capability you guys have amongst yourselves. So it's not about
वेटिंग टू फील रेडी कि अच्छा हम रेडी होंगे तो हम लीडर बनेंगे, या हम 50 साल के होंगे तो हम जाके लीडर बनेंगे। दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। सो जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, तो यू शुडंट डाउट योरसेल्फ दैट मच कि आपको लाइक इन पाकिस्तान वी यूजुअली वेट फॉर वैलिडेशन, या राइट मोमेंट का हम वेट कर रहे होते हैं। एक ठीक मोमेंट आएगा जब हम रेडी फील करेंगे। यू वुड नेवर फील रेडी। इट जस्ट स्टार्ट्स, इट बिगिंस व्हेन यू डिसाइड नॉट टू श्रिंक एनीमोर। ठीक है, आप अपने वैल्यूज़ या आपके जो ओपिनियंस हैं, आप उनको अहमियत देना शुरू कर देते हैं कि ओके आपकी स्टोरी मैटर करती है, आपके जो ओपिनियंस हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, दे मैटर। बेशक नेक्स्ट पर्सन का डिफरेंट आपसे ओपिनियन हो जाए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट हैविंग योर ओन ओपिनियंस। एंड इट्स नॉट कि यू हैव टू बी लाउड, यू हैव टू बी डोमिनेंट या परफेक्ट होंगे तो आप लीडर हो सकते हैं, नहीं। इट्स लेट्स से इफ आई आस्क अ क्वेश्चन राइट नाउ, तो यू मस्ट हैव इनफ गट्स कि आप लोग अपना हैंड रेज करें या माइक अनम्यूट करें और आगे बात करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे लीडर्स होते हैं वो इस वजह से सप्रेस हो जाते हैं, बच्चों का टैलेंट इस वजह से रह जाता है, बिकॉज वी हैवंट टॉट देम हाउ टू स्पीक अप। कि अगर हमने एक मीटिंग ज्वाइन की, अगर हम किसी क्लास में बैठे, आपको ठीक आंसर आता भी होगा बट यू वुड बी शाय। ओके गलत हो गया तो क्या होगा, अच्छा मैं हैंड रेज करूँ, अच्छा कौन क्या सोचेगा, ओ हु केयर्स कौन कौन क्या सोचेगा, इट्स अबाउट यू। Okay, so if you're in this life, if you're born, you need to stop caring less about people. Because if I come here and say कि don't care about people at all, तो सबको होगा कि नहीं ये तो आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। तो you should try to think less कि कौन क्या सोचेगा, अच्छा मैं हैंड रेस ऐसे करूँ तो क्या होगा। like we just care too much about people कि मैं ये वाली चीज़ करूँ तो किसी का क्या ओपिनियन। To be very honest, if you're on a bus, you're going home and you're crying, no one is gonna care. If someone really cared, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपको एक टिश्यू पकड़ा देंगे, ठीक है। But they're not gonna probe you, they're not gonna judge you, because everyone has their battles to fight. If you had a long day and you're going home and you're crying, so there's nothing wrong with it. So you don't have to just keep your emotions inside कि okay क्या कहते हैं, हमें जज किया जाएगा, right? So आपका जो कॉन्फिडेंस है, समथिंग ओके फॉर यंग पीपल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Even when before I came the president of the literary society, even I had my doubts कि ओके मेरे से कैसे होगा। एंड when you are into that position, आपको तब भी थोड़े डाउट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लीडर बन गए आपको कभी डाउट्स ही नहीं आएंगे, नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स कि आपके आसपास देयर वुड बी, trust me, there would be men and females, yeah, women who are going to drag you down, and you just have to stand upright. I cannot put enough emphasis on this thing. आपके आसपास मेल्स भी होंगे लेकिन फीमेल्स भी होंगी, ठीक है, that are just going to drag you down कि वो they wouldn't want you to come ahead, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स समझ लें, या एक ब्रॉटअप भी इस तरह का होता है टू बी एट फर्स्ट लेकिन बाकी किसी को ना आने देना। तो डोंट रिलाई एंटायरली ऑन समवन एल्स कि कोई कहता है कि नहीं हम आपको किसी चीज़ का लीडर बना देंगे, हम आपको फलां रोल दे देंगे। नहीं, वर्क हार्ड फॉर इट ऑलवेज एंड मेक श्योर कि द नेक्स्ट पर्सन इज सिंसियर इनफ। ओके, बिकॉज ये वाली चीज़ होती है कि हम किसी पे भी ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं। तो डोंट ट्रस्ट एवरीवन, बी नाइस, ठीक है, लेकिन बी नाइस होने का ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू ट्रस्ट एवरीवन। वर्क फॉर योर ओन जर्नी, खुद से आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने में ये है कि छोटी छोटी आपके पास क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अनपेड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वॉलंटियर प्रोग्राम्स होंगे, वो आएंगे तो ज्वाइन दोस्त, ठीक है। बिकॉज मोस्टली बच्चों का होता है कि हाउ कैन वी डू दिस। आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ लाजमी होती हैं, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल। अब जैसे मुनीसा हैं, शी इज़ होल्डिंग दिस सेशन, तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज स्टे कनेक्टेड विद हर और फॉलो हर और कनेक्ट विद हर ऑन इंस्टाग्राम, सॉरी लिंक्डइन, ओके, लिंक्डइन या व्हाट्सएप, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू गाइस प्रेफर। एंड उससे आगे ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर मुनीसा पोस्ट कर रही होती हैं तो यू गाइस कैन गो अहेड एंड जॉइन इट, ठीक है। क्या कहते हैं, आई थिंक कॉन्फ्रेंसेस मुनीसा करवाती हैं, ठीक है, शी इज़ अ डायरेक्टर इन इट आई थिंक। तो मैं मुनीसा की वो वाली व्हाट्सएप स्टोरीज जो है वो देखती रहती हूँ, तो व्हेन एवर आई फील लाइक ज्वाइनिंग इट कि ओके मेरे पास इस चीज़ का टाइम है, आई जस्ट गो अहेड एंड जॉइन इट, ठीक है। तो ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग दीज थिंग्स। तो अभी आपके पास अगर स्पीकर्स आ रहे हैं, ट्राई टू कनेक्ट विद देम कि अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आगे कोई पोस्ट करते हैं तो यू कैन एक्टिवली एंगेज ऑन दोस, ओके। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है दैट वुड बी बिल्ट थ्रू एक्शन, और एक्शन इसी तरीके से होगा व्हेन यू गाइस स्टार्ट टेकिंग द रिस्क। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर लें, बाय स्पीकिंग अप इन द क्लास,
क्लासरूम्स में सब बच्चे ही जाते हैं, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता है और वहाँ से एक्सपीरियंस आएगा एंड योर एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट मेक्स यू पावरफुल बिकॉज एक्सपीरियंस में यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स। फनी एक्सपीरियंसेस भी होंगे, ऊपर नीचे भी चीज़ें हो जाती हैं, तो डोंट फील अबाउट इट कि ओके एक एक्सपीरियंस बुरा हो गया, 2 बुरे होंगे, 5 बुरे होंगे, 6 बुरे होंगे, इट्स ओके, लेकिन देयर वुड बी ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, कोई ना कोई उसमें अच्छी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ब्लंडर्स होते हैं, ट्राई टू टेक दोज ब्लंडर्स वेरी लाइटली। ठीक है, कुछ उल्टा हो जाता है उसको भी आप फन के तौर पे ले जाया करें। शुरू में मुश्किल होता है, यू यू फील वेरी सीरियस अबाउट थिंग्स, दे इवन हर्ट, बट इट्स ओके। ठीक है, एंड जो आपका लीडरशिप होता है, लीडरशिप ये नहीं होती कि यू आर अबव पीपल, इट इज़ कि यू आर स्टैंडिंग बिसाइड एवरीवन एल्स एंड यू आर टेकिंग एक्शन, यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस। बट आप जब एक लीडरशिप के पोजीशन पे होते हैं, यू लिफ्ट अदर्स अप एज वेल। लीडरशिप ये नहीं होती कि खुद आगे बढ़ जाना और बाकियों को पीछे छोड़ना या बाकियों को ऑन पर्पस पीछे रखना। सो ट्राई टू वर्क टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पर्पस क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, व्हाट यू आर, बेसिकली ट्राई टू फिगर आउट योरसेल्फ। एंड जब आपको लाइफ चैलेंज करती है, आपको लोग डाउट करते हैं, तो गो टुवर्ड्स रेजिलियंस, ट्राई टू बी ये कहते हैं स्ट्रोंगर, क्योंकि जब आप में रेजिलियंस बिल्ड हो जाती है तो दैट अलाउज यू टू कम फॉरवर्ड। आप आगे आते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों में। एंड अ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑथेंटिसिटी। किसी और को कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आप रिसर्च करें, बट आपके ओपिनियंस आपके अपने ओपिनियंस होने चाहिए, आपकी अपनी बिल्कुल ऑथेंटिक वॉइस होनी चाहिए। या बिल्कुल मिस Varida, thank you so much for your या valuable, inspiring thoughts. Your या नो words have वरीज। truly encouraged, truly encouraged our audience and highlighted the या importance of leadership and empowerment. We sincerely यस, appreciate your time and contribution to this session. Thank you थैंक यू so much. अनीसा, थैंक Thank यू, you हैव very अ much. गुड डे। Thank you very much. So, our young leaders, I hope so you all are enjoying our incredible today's session. And if you are here, so I wanna show you some kind of presence here. आप react करें ताकि मुझे पता चले आप सब जाग रहे हैं. So let's looking forward to our next speakers, or let's make this session more exciting and more valuable. और attendance form आपको जो है वो बहुत जल्दी form मिल जाएगा. आप सब ने अपनी जो attendance है make sure करनी है ताकि form पर लगाइए ताकि आपको बाद में problems ना हो. ठीक है? Attendance जो है उनकी consider की जाएगी जो form पर अपनी mark करेंगे. So now I would like to invite our next speaker, Dr. Sayyeda Nurunnen. She is clinical dietitian and nutrition expert with a doctorate in nutrition sciences and more than 4 years experience of clinical experience. And she is a CEO and founder of Nourish Women Health, Nourish Kids, and she is also an active speaker with a different organization and served as a co-HR member of SPSC Society. And we are honored to have you, ma'am, with us today, Dr. Nurul, and the stage is yours. Assalamualaikum everyone. Walaikum Assalam. I hope all of you are fine. And I would like to thank Ms. Manika, CEO of Learning Europe and online. And my name is Dr. Sita Nurlen, and my I did graduation and I'm fit. And I have a 4 year clinical experience. Alhamdulillah. My society is the Nourish Woman Health Society. Nourish farmer ini kaya बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्प होने की कुछ प्रॉब्लम से वो नहीं होती है तो वो इतनी उसको दबाया जाता है, उसको रोका जाता है कि नहीं ये नहीं बताना, अगर किसी को पता चल गया तो वो रिश्ता नहीं लेगा या वो प्रॉब्लम होगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, आपकी हेल्थ नहीं ठीक हो रही तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये मदर के थ्रू ही आप कर सकते, बट ये मदर की कुछ सोसाइटीज में अभी ये अपने हस्बैंड से डरती हैं कि अगर तुम्हारे वालिद को पता चल गया या कुछ पता चल गया या सोसाइटी को पता चल गया
Madaling ako ininigay or inimigkan on kata hamarin ko kartime in other norme यहाँ पे Instagram social media हर चीज के और न्यूज आई है यहाँ पे है इनकी है अगर वो इनको करते जी मैम, awareness excuse me. देना शुरू करते हैं कि women I अगर think there is some अपनी technical issue by your side. You are breaking, and it's not going to be well to us. आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है. I think the net problem है. may I audible? Yes, now you are. Sorry, थोड़ा मेरा यहाँ पे मैं गाँव वाली साइड में रह जी ma'am, thank you so much for the sharing sir insights and now may I informative thoughts. continue my Ma'am, there is net problem by your side and we are not able to understand you. So your knowledge and experience have truly added great value to our today's session, and we are grateful may I for your audible? presence. And ma'am, there is technical issue by your side. Saeed, ma'am को inform कीजिए on group. जी may I audible to you? Yes, ma'am, now you are. I said to you that there is some okay. technical issue by your side, and that's why we are looking forward to the next speaker. Okay. So Okay. it's my pleasure to invite our final the next guest speaker, Javeria Lateef, and she is dedicated trainer and public speaker who has conducted impactful sessions at the many universities on the topics such as communication skills, soft skills, and leadership and women empowerment. So her work continues to inspire and guide many individuals. Ms. Javeria Lateef, the platform is yours. Please, Akib, make Ms. Javeria to co-host as well. Ji, ma'am Javeria, are you there? So I think so, ma'am is not here. So let's make this session some kind of more engaging. Let's take some kind of questions from the audience. If you have any kind of questions, you may ask. And the next, we will looking forward to the next guest speaker. Yes, you all can raise your hands. आपको unmute किया जाएगा and you may ask a question. Akib, You ma'am. can also ask your question in chat box. आकिब मैम मौजूद है मीटिंग में और आपने उनको होस्ट नहीं किया हुआ. प्लीज मेक हर को होस्ट प्लीज. Miss Javeria Lateef, if you are there, so please raise your hand. Yes, please. Akib, please make ma'am co-host. Thank you, Akib. Yes, please, ma'am Javeria, the stage is yours. Hello, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Am I audible? Yes, you are. Oh, thank you so much to all of you. Thank you so much to the team. Thank you so much for the wonderful introduction. My name is Javeria Lateef, and I am a trainer speaker in a so many trainings overall Pakistan in so many universities, NAST, FCIT, New Campus, Old Campus, and so on. So let me just start with one of the most asked question.
आई थिंक जब मैं ये सवाल बोलूंगी तो आई वांट के आप में से जिन जो लोग इस क्वेश्चन से एग्री करते हैं या उस चीज को फील करते हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दें या फिर आप हैंड रेस कर दें. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, close your eyes for the next 5 seconds and imagine that you are in your 18s, like you are in your 80 years old, and आप imagine कर रहे हो कि हाँ आप 80 साल में बैठे हुए हो और आप अपनी लाइफ में किस चीज का रिग्रेट करोगे, उन चीजों का, लाइक जो रिस्क ले चुके हैं आप उन पे रिग्रेट करोगे, या उन चीजों पे रिग्रेट करोगे कि जो चीज हमने ट्राई नहीं की, कि शायद हमें ये चीज ट्राई कर लेनी चाहिए थी, मे बी अगर वो ना होता तो उससे कुछ और चीज हमें मिल जाती. सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस कि हाँ हमें ये चीज ट्राई कर लेनी चाहिए थी, या कुछ भी इस तरह का. सो कैन यू प्लीज, सम ऑफ यू कैन रेज योर हैंड्स और लाइक दैट. Okay, please open the comment box for the questions. It's open, ma'am. Thank you. So anyone? Okay, so we have multiple हैंड रेज और हमें मिल रहे हैं. लाइक आई जस्ट वांट के मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत रियलिस्टिक तरीके से बता सकूं कि हम जब कुछ लीडर्स को देखते हैं या हम अपने कुछ रोल मॉडल्स को देखते हैं तो हमें हमेशा ये होता है कि हमने उसकी तरह हमेशा बनना है, बट वी डोंट नो कि हाँ हमें किस तरीके से बनना है. जब हम उनकी स्टोरीज को देखते हैं तो वो उनकी, अगर हम स्टोरीज और उनकी हिस्ट्रीज को पढ़ें या उनसे सुने तो वो कभी भी इस तरह नहीं होता कि उनने उन्हें जो चीज बताई गई हो, जो चीज सोसाइटी की हो, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता. दे ऑलवेज ट्राई टू डू व्हाट दे वांट. मतलब हम कभी भी वो नहीं कर सकते हैं जो हमें सोसाइटी कह रही है, जो हमें कम्युनिटी इस चीज पे कर रही है कि हाँ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर. आप हमेशा, हमें हमारी जॉब्स, हमेशा हमें हमारी इन वो फ्यूचर की चीजें सेलेक्ट वो करनी चाहिए जो हमें सेटिस्फाई करें, जिनसे हमें सेटिस्फैक्शन हो, जो काम करके आपको सुकून मिले. आई थिंक सो 3 वैल्यूज जो हर इंसान में, हर लीडर में होती हैं. और अगर आप अपने आप को देखो तो यू आर अ लीडर, बट यू डोंट नो योर वैल्यूज. आपकी वैल्यूज कहाँ हैं, क्या है, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो. अब हम हमेशा, हमारे लीडर्स, हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ हमेशा न्यू चीजें ट्राई करने से डरती है. वो हमेशा उस चीज की तरफ जाते हैं कि हाँ अगर हमारी कम्युनिटी में एक इंसान इस मकाम तक पहुंच गया है, इफ ही और शी इज अ डॉक्टर, सो आई वांट आल्सो बी अ डॉक्टर. नो, वो कभी उस चीज की तरफ जाते ही नहीं है कि विच थिंग्स आर मेड फॉर मी, क्या चीजें मुझे सुकून दे रही हैं, क्या चीजें मेरे लिए हैं. आई थिंक सो एक लीडर में क्यूरियोसिटी होती है, एक लीडर में courage to be a different, like you have the courage to be different, you are different from every person. हम एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है, हमारी वैल्यूज एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है. हम कभी भी एक, अगर वो इंसान ऐसा है तो हम कभी भी उस इंसान जैसे नहीं बन सकते. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पता. एंड अगर हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाएं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस के भी होंगे, तो अगर हमारी क्लास में या हम कहीं पे कोई कचरा फेंक देते हैं, कोई चीज ऐसी होती है, तो वी ऑलवेज वांट कि हाँ जिसकी ड्यूटी है वो उठाए. नो, अगर कोई लीडर हो तो वो ड्यूटीज नहीं देखता. ही नेवर एवर वेट्स फॉर द परफेक्ट मोमेंट, ही नेवर एवर वेट्स कि हाँ कोई एक इंसान आएगा वो ये करेगा तो अगर मैं ये करूंगा तो मेरी वैल्यू इससे कम होंगे. नहीं, आपको एक्शन लेना है. आप एक्शन जब लेना सीख जाओगे, जब आप ये देख, आपको ये समझ में आ जाएगी कि हाँ मुझे अपनी वैल्यूज से किस तरह से रिलेट करना है, मेरी वैल्यूज क्या हैं, तो आपको हमेशा समझ आ जाएगी कि मुझे जिंदगी में आगे क्या करना है, मैं किस चीज से रिलेट कर रहा हूँ. रिस्क हमेशा इंसान को चीजें सिखाते हैं. हमें हमेशा डर लगता है कि हाँ हम अगर इसमें फेल हो गए, या हम उस जगह तक ही ना पहुंच सके जो हमने इमेजिन की है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है.
वी नेवर एवर वांट्स कि हाँ आप जिस भी इंसान को देखें वो कभी भी अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब नहीं होता है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में हर हर इम्तिहान में पास नहीं होता है। उसको कहीं ना कहीं चीजें फेल करती हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों से सीखता है। एंड वेरी 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 रियल जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिली थी हमारे स्टूडेंट से, जब हमने एक सर्वे किया था और हमने अपने डिफरेंट जो हमारे सेशन हुए थे उनमें हमने स्टूडेंट से एक फॉर्म फिल कराया था, तो उसमें 95% स्टूडेंट्स वो थे, 95% हमारे लीडर्स वो थे जो उस क्राउड की तरफ जाते हैं जो कि ऑलरेडी रॉन्ग है, जो कि वो जानते हैं कि हाँ इस क्राउड की तरफ, इस मजमे की तरफ जाते हुए मुझे कुछ नहीं मिलना, बट दे स्टिल चूज दैट वे कि हाँ मुझे इसी रास्ते में जाना है, मैं उस रास्ते में नहीं जा सकता हूँ जो रास्ता मेरे लिए नहीं बना है। तो दैट्स मीन द लीडरशिप बिलोंग्स टू द 5%। मतलब उनको जो वो कर रहे हैं, जो वो जिंदगी में करना चाहते हैं, वो सिर्फ उन लोगों की है जो सिर्फ 5% उस चीज को डिसएग्री कर रहे हैं कि हाँ हमें इस चीज की तरफ नहीं जाना। सो द आई जस्ट वांट टू से कि यू आर नेवर एवर बोर्न टू फिट इन। आप कभी भी इस चीज के लिए नहीं पैदा हुए हो कि जहाँ पे आपको धकेल के फिट किया जा रहा है आप वहां पे फिट हो जाओ। यू आर बोर्न टू लीड, यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर इटसेल्फ। जस्ट अपनी वैल्यूज को याद रखें, अपनी वैल्यूज को जानें, कभी भी किसी भी उस इंसान की तरफ मत जाएं जो आपको धकेल रहा है, जो आपकी वैल्यूज की कदर नहीं कर रहा है। कभी भी उस सोसाइटी के डिसीजन की तरफ ना जाएं जो आपको इन फ्यूचर आपके अब वो आपके लिए एज अ ट्रॉमा, एज अ प्रॉब्लम्स, एज अ मतलब आपकी जिंदगी को, आपकी जिंदगी के वैल्यूज में एक अलग तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। चूज योर ओन वैल्यूज, वो चीजें चुने जिन चीजों से आपको सुकून मिलता है। लेट मी जस्ट शेयर द लास्ट थिंग। जब मैं अपनी मैट्रिक्स और इंटर में थी तो आई रियली रियली डोंट नो कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज करनी है, मुझे किस तरफ जाना है। बट आफ्टर टेकिंग बहुत बुरे बुरे स्टेप्स, और इसमें मुझे तकरीबन 2 साल लगे टू नो वेयर आई एम। मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे जिंदगी में क्या चीज सुकून दे रही है, उस चीज को जानते हुए मुझे पूरे 2 साल लगे। और एट द एंड मुझे वो चीज पता चल गई कि हाँ मुझे जॉब्स, मुझे किस चीज के लिए मैं बनी हूँ, मेरी क्या वैल्यूज हैं, कहाँ पे मुझे लाइक करना है, कहाँ पे मुझे डिनाई करना है। सो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप अपनी जिंदगी में जाके कहाँ पे किन चीजों को रिग्रेट करते हो या एज अ फ्यूचर उनको लेते हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Vadia Lateef, for your inspiring and meaningful words. And literally मैंने भी आपके साथ relate किया कि ये तमाम वो problems हैं जो एक beginner और एक student इस चीज़ को face कर रहा होता है, to be knowing their self. And your insights on leadership and communication have truly motivated our audience today, and we are truly grateful for your presence and valuable contribution. Thank you very much. Next, looking forward to our last guest speaker of today. और उसके बाद हम Q&A लेंगे, and then we have a very incredible thanks note from the CEO of English with Komal Institute. So stay connected with us. Now I would like to invite our next inspiring speaker, Ms. Aisha Mirza. She is international relations student at Bahauddin Zikriya University, Multan, and actively involved in platforms, and she is also running two small businesses, have experience in video editing, and has served as an ambassador of Youth Speak Farm and in Told Pakistan. Her passion of youth leadership and empowerment is truly, truly inspiring. Miss Aisha Mirza, the stage is yours. Over to you, ma'am. Am I audible? Yes. Okay, so thank you so much for having me and for giving such a warm welcome, Aniza. First of all, happy International Women's Day to every woman out there. Myself, Aisha Mirza, I'm a student and with academics, I'm an entrepreneur as well. So, like, I'm so happy that we have so much potential out there and we just have to push it forward. Like me, like you, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनके पास स्किल्स हैं and they are utilizing them. But those
जो जिनके पास स्किल है बट उनको नहीं पता कि उसको यूटिलाइज कर कैसे करना है, तो हम सब स्पीकर्स हैं, मतलब जैसे कि हम हो गए, उनके गाइडेंस के लिए और भी लोग हो गए। तो आज का डे बेसिकली है ही इस चीज़ के लिए कि हम उनको एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें ना, कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर जा सके। तो आई एम गोना गिव यू द ब्रीफ ओवरव्यू कि हाउ आई स्टार्टेड, कि मैंने अपना स्मॉल बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। तो आप सबको आइडिया होगा उन छोटे बीडी ब्रेसलेट्स का, तो मैंने अब उसको वहाँ से बनाना स्टार्ट किया एंड देन आई मेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट। वहाँ जाके मैंने उसको पोस्ट कर दिया और वो थोड़ा सा ग्रो हुआ, और उसके बाद आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर, जो कि मुझे ना लाहौर से आया था। बट मुझे ये नहीं पता था कि उसको अब मैंने डिलीवर कैसे करवाना है। तो इस तरह चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुई। मैंने उसके लिए आपको पोस्टेक्स के पास जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है और काफ़ी इस तरह चीज़ें होती हैं। तो अब अकाउंट खुलवाना था, उसके लिए कार्ड की भी ज़रूरत थी और तब मेरे पास कार्ड नहीं था। तो चीज़ें मैंने की, मैंने अपना कार्ड बनवाया, उनके साथ पार्टनरशिप की, सारी चीज़ें हुई और मैंने अपना वो अकाउंट स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने अपना पहला ऑर्डर इस तरह डिलीवर करवाया, यानी कि सीख के। ये हुआ। उसके बाद अपनी मैंने अकाउंट को ग्रो इस तरह किया कि मैंने उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड की। मैंने डिफरेंट वेंडर्स को रीच आउट किया, मैंने देखा कि मुझे कहाँ से कौन सी चीज़ किस तरह मिल रही है, मैंने वो सब चीज़ें की। तो वो सब चीज़ें करने के बाद आई केम टू द पॉइंट कि ये चीज़ें ईजी है करने में, आपको बस एक पहला स्टेप लेना होता है। अब आप देखिए, मेरे पास एडिटिंग की स्किल्स होगी, मेरे पास कैनवा की स्किल हो गई। जब आपके पास ये सब स्किल्स हैं और आपके पास एक ऑप्शन भी है कि आपको अपना बिजनेस बनाना है, तो आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए, मैं कह सकती हूँ कि मेरा स्मॉल बिज़नेस है, मैं अभी प्रोफ़ेशनल फुल लाइक लार्ज स्केल पे नहीं हूँ, बट स्टिल मैं अब तक मैंने जो भी किया है, मैंने वो सारा कुछ लाइक खुद किया, क्योंकि मुझे उस चीज़ का शौक था। अब वो शौक जब आपको एक चीज़ अर्निंग में आपकी बन गया है, तो वो आपको ही बेनिफिट कर रहा है और तो किसी को नहीं कर रहा। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो हुआ, मुझे पता चला। और आई वुड से कि हर किसी की कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई स्किल होती है। तो आप उसको यूटिलाइज़ करो, उसको एक एक स्टेप लो और आगे उस चीज़ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। अब जैसे कि मैंने अपना अकाउंट बनाया, फिर मैंने उसको रीच बढ़ाई, फिर मैंने एड्स बनवाए। पहले तो मैंने एड्स के लिए किसी और को रीच आउट किया, फिर मैंने एड बनाना भी सीखा, लाइक आप कैसे किस किस टाइप के अपने ऑडियंस को रीच आउट करना है, क्या करना है, मैंने वो सीखा। वो सीखने के बाद मैं अपने अकाउंट पे खुद एड्स लगा रही हूँ। तो जब आप छोटी छोटी चीजें सीखते हो, तो आपको चीजों का पता चलता है। और वो सीखते कैसे हो, कि आज आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपको एक्सपोजर बढ़ता है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपको वो मिलेंगी तो आपको लोगों का पता चलेगा। अब आप बिल्कुल एक लाइक चुप रहो, कोई काम ना करो, आप यूनिवर्सिटी आओ और फिर चले जाओ, ऐसी यूनिवर्सिटी का कोई भी फायदा नहीं है। अब मैं जब यूनिवर्सिटी आई थी, मैंने अपनी एकेडमिक्स के साथ अपना स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट किया, तो ये शौक की वजह से ही स्टार्ट हुआ। तो मुझे वहां से जाके और लोगों से मैं मिली, मुझे पता चला कि क्या चीज़ें किस तरह होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो अब वो मेरा अकाउंट बन गया, मुझे ऑर्डर्स आने लगना शुरू हो गए। तो ये नहीं होता कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। नो डाउट चाहिए होती होगी लार्ज स्केल के लिए, बट एक स्मॉल स्टेप के लिए आपके पास जितनी भी आपकी सेविंग है, थोड़ी हो कुछ हो, आप एटलीस्ट एक स्टार्ट तो लो। जब तक आप वो बेस ही नहीं बनाओगे, अगर आपके माइंड में ये अच्छा ये मेरा आइडिया है, मैंने ये बनाना है, आइडिया का हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको आइडिया आया, आप उसको प्रैक्टिकल वे में लेकर आओ। आप अब फॉर एग्जांपल आपने आइडिया है मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप वो अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करो, पोस्टिंग करो, चीजें लेके आओ। तो इस तब हम बोलेंगे कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। चाहे वो कोई छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, आप वो करो। और अगर 2-3 दिन बाद या 5 दिन बाद आप सोचो कि अच्छा अब मैंने स्टार्ट करना है, आपको ये तो पता है ना एक चीज मैंने स्टार्ट की हुई है, अब उसको आगे प्रोग्रेस पे लेके जाना है, तो वो चीज उस तरह होगी। अब इस तरह मेरा अकाउंट स्टार्ट हुआ, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो इतना हुआ कि मेरी सब फैमिली वाले मेंबर्स को पता चला कि अच्छा आयशा एक बिजनेस कर रही है। मेरे पहले कस्टमर्स मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरे पहले कस्टमर्स मेरी फ्रेंड्स थी। तो वो आपके फैमिली के, आपके सराउंडिंग के लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और अगर स्टिल आपको फील हो कि आपके पास कहीं से क्रिटिसिज्म आएगा, तो वो भी आता है। और वो सिर्फ मेरे पास एक आया था, वो भी मेरे एक फैमिली मेंबर की वजह से, कि अच्छा आपकी स्टडीज हैं तो फिर ये कैसे कंटिन्यू करोगी। तो उस टाइम पर मेरी मदर बोली थी कि नहीं, ये शौक होता है, कोई बात नहीं, करने दो उसको। अब मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ इस चीज से, कि देखो, आप फ्री होते हो, आप स्क्रोलिंग करते हो, आप मूवीज देखते हो, सब कुछ देखते हो। अब वो चीज आपका शौक है, वो करो जिससे आपको पे बैक भी मिल रहा है, तो ये क्या अच्छी बात नहीं है। आपको उस चीज से पे बैक मिल रहा है, तो दैट्स रियली गुड। तो वहां से वो चीज स्टार्ट हुई। इसी तरह अब मेरा जो सेकंड है, वो भी मैं आपको ये बताऊंगी कि वो सिर्फ मेरा एक शौक है, शौक से मैंने स्टार्ट किया। लाइक मुझे बेकिंग करना बहुत पसंद है, तो मैंने बेकिंग स्टार्ट की, मैंने उसका भी पेज बना लिया। अब आप देख रहे हो कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं फॉरन वो चीज़ बना रही हूँ, और मुझे उस तरह की एस्थेटिक्स बनाना बहुत पसंद है। मैंने वो पेज बनाया, मुझे ऑर्डर्स आ गए। अब ये नहीं है कि आप सारा टाइम
उसके ऊपर दो, अपनी सारी चीजें छोड़ दो, रिलैक्स होके काम होके अगर आप कोई चीज करोगे ना, कि या आप अगर अपने बिजनेस या अपनी किसी चीज को एक हॉबी की तरह, साइड स्किल की तरह समझो, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। आपको ये टेंशन नहीं होती कि अच्छा मैंने इसके ऊपर 40,000 लगा दिए, 50 लगा दिए, अब मुझे ये करना ही करना है। इसलिए हम सेइंग कि थोड़े से स्टार्ट करो, उसको बिल्ड करो, जब वो ज्यादा हो जाएगा तो आपको एक्सपीरियंस भी उस चीज से आएगा, आपको उस चीज से पता भी चलेगा। साइड बाय साइड मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अपने डिपार्टमेंट में हो गया या अपनी यूनिवर्सिटी में हो गया, मैं डिफरेंट चीज़ों में एक्टिव हूँ, लाइक डिफरेंट सोसाइटीज़ या कोई लीडरशिप वर्क हो गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी आओगे, पढ़ोगे, वापस चले जाओगे, ऐसी यूनिवर्सिटी का मुझे आप ये बताएं कि क्या फ़ायदा हुआ जब आप कोई चीज़ सीख के नहीं जाते। क्योंकि आपको आपको जब अपने लिए बोलना नहीं आएगा, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आएगा, आप कुछ कह नहीं सकते, अपना स्टैंड नहीं ले सकते, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करोगे। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने यूनिवर्सिटी में आपकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सोसाइटीज़ हो गया, ये हो गया, वॉलंटियर वर्क हो गया, आप उन सब में पार्टिसिपेट करो। एक करो, कुछ करो, बट कुछ तो करो। आप वहां जाओगे, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपको लोगों का पता चलेगा, आपको एक्सपोजर होगा। क्या पता आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्या पता आपको किसी स्किल के लिए कोई जॉब मिल जाए, या आपकी कोई स्किल है आप वो आइडेंटिफाई कर लो और उसमें आप प्रैक्टिस कर लो। सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप उस चीज़ पे वर्क कितना कर रहे हो। अब मैंने अपना बिजनेस, मैंने वो जो क्यूबी जो मेरा ज्वेलरी बेस्ड बिजनेस है, मैंने वो स्टार्ट किया, फिर मैंने अपना, अब आपको ये पता है कि जो मैंने आपको वो बेकिंग का मेंशन किया, वो सिर्फ ये है कि जब मेरे पास ऑर्डर आते हैं ना, वो मैं बना के दे देती हूँ, क्योंकि मुझे वो बनाना पसंद है। अब मेरी स्किल है, वो उससे मुझे एक पे बैक भी हो रहा है, तो और क्या चाहिए। तो 8 मार्च जो आज है, मतलब वुमेन्स का इंटरनेशनल डे जो हमारे पास है, तो यही है ना कि वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इतना भी ना हो, बट एटलीस्ट एक ये सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं खुद कुछ कर रही हूँ, मेरे पास खुद कुछ आ रहा है। कि अगर आपका फैमिली का बैकग्राउंड भी अच्छा है, आपका स्टेटस अच्छा है, वो मैटर नहीं करता। अगर नहीं अच्छा, तो एक औरत की सेटिस्फेक्शन ज्यादा मैटर करती है कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, और ये मैंने खुद किया। इवन तो मेरे फादर ने मुझे बोला था कि आई एम गिविंग यू द इन्वेस्टमेंट, आप ये करो, मैंने वो नहीं ली, क्योंकि मुझे खुद वो चीज़ करनी थी, एंड आई एम हैप्पी विद इट। अभी भी मैं अपनी चीज़ें, अगर मेरी स्टडीज कंटिन्यू चल रही हैं, मेरी बाकी चीज़ें हैं, मैं वो साइड बाय साइड चीज़ें लेके चल रही हूँ। तो मैं जितने सब यंग लीडर्स हैं, या अभी जितनी ऑडियंस मुझे सुन रही है, मैं सबको यही मोटिवेट करूंगी कि एक सिर्फ एक बात बोलूंगी मैं, कि आपके माइंड में अगर कोई आइडिया आ रहा है ना, तो प्लीज आप वो आइडिया उसको ना प्रैक्टिकल वे में लेके आओ। इवन दो वो सिर्फ एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, आप उसको परफॉर्म करो, आप वो चीज करो। क्योंकि जब आप वो चीज करोगे ना, 2-3 दिन बाद अगर आप उसको भूल भी जाओगे, बट एटलीस्ट आपको पता होगा अच्छा आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपको कंटिन्यू करना है। और अगर अगर किसी को कोई मुझसे इस बारे में चाहिए भी कि ओपिनियन, ये किस तरह स्टार्ट किया, मैं अभी अभी तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं उनको इन डिटेल भी वो चीज़ समझा दूंगी कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ें की। अब देखें, मेरे सिर्फ एक बिजनेस है ना, मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया। अगर मैं कोई अपना नीश चेंज भी करना चाहूँ अपने प्रोडक्ट की, मुझे वो भी पता है। अब मैं अपने जो पीएच की डिज़ाइन वगैरह सब कुछ करती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। तो मैं यही कह रही हूँ, करने से आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। तो आई वुड मोटिवेट ऑल ऑफ यू के आप लोग जो आप लोगों को जो चीज़ें पसंद है, आप वो करें। इवन तो आपकी कोई छोटी सी स्किल ही क्यों नहीं है, आपको बस सेल करना आना चाहिए कि आप वो किस तरह सेल कर रहे हो। और टेंशन की कोई बात नहीं होती, सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। आपका सिर्फ अच्छा है कोई आपको कोई मोटिवेट करना कोई होना चाहिए। लाइक लोग काफ़ी मोटिवेट करते थे, बट ये है कि आप खुद होते हो जिसको वो चीज़ परफॉर्म करनी होती है। कोई भी आपको प्लेट में कोई चीज़ ला के नहीं देता। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ पे सब वर्क करें। कोई बात है, कुछ भी है, सब कुछ। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कोई हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Aisha, for your wonderful thoughts. Your journey, experiences, and truly inspiring for your young people and who want to grow and make an impact. We sincerely appreciate your time and contribution of today. Thank you very much. And you can also paste your LinkedIn account here so people can connect with you. So now we will move forward to our short questions and answers. If any participants would like to ask any questions, so please raise your hand and we will unmute you and you can ask a question. If anyone wants to ask some question from Miss Aisha according to the businesses and how to lead with this, we have incredible speakers here. So it's a very golden opportunity to all of you. Yes. प्लीज आप जब ज्वाइन हुआ करें तो विद योर नेम आप ज्वाइन हुआ करें। सो प्लीज पहले आप अपना नेम भी चेंज करें एंड देन वी कैन अलाउ यू टू अनम्यूट यू। द नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज। आयशा आसिफ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा। सो निशा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पहले तो कर रही हूँ बीएस इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स दोनों में बीजीयू से। सो मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स क्राफ्ट डिज़ाइनिंग इस सारी साइड पे है। मुझे अपनी नीच फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है थोड़ी सी। मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट शो होता है, मैं बहुत सारी ट्राई करती हूँ, फिर मुझे नेक्स्ट पसंद आ जाती है। सो कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ आ रही है कि फाइनलाइज किसे करें, किसे आगे जा लेके चलें। सो इसमें अगर आप गाइड कर सकते हो तो थोड़ा सा हेल्प करो। जी मिस आयशा, प्लीज एड्रेस द आंसर। लगता है इन्हें आवाज़ ही नहीं आई। जी मिस आयशा मिर्जा, आर यू हियरिंग? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी आयशा, यू आर ऑडिबल। I हैव यू your लिसन माय क्वेश्चन? your I understand your question. Please mute your mic. आपका बैकग्राउंड बहुत नोइजी है। ओके, सो इस क्वेश्चन को मैं आपको एलैबोरेट करना चाहूँगी कि समटाइम्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ, एंड लिटरली मेरे साथ भी ये इशू हुआ करता था कि एक स्किल पर आपने कुछ अरसे तक काम किया और नेक्स्ट जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो आपको एक और नई स्किल समझ आ गई, पसंद आ गई, और आपने जो है वो उसको चूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमनली सबके साथ होता है। देखें, जब आपने एक स्किल चूज करनी होती है और जिस पर वर्क करना होता है, सो यू शुड हैव टू बी कंसिस्टेंट। जो मोटिवेशन है ना आपकी, जैसे आपने सेशन लिया, आपको मोटिवेशन मिली कि मुझे ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कोई और बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे जो है इस तरह की कोई चीजें स्टार्ट करनी है, तो उससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिल गई, आपने वो स्टार्ट कर दिया। कहीं थोड़ा सा आगे जाकर आप स्टक हुई, आप थोड़ा सा स्टक हुई, आपने उस चीज को वहीं स्टॉप कर दिया, उसको प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ नहीं लेके गई, उसको और ज़्यादा इन्हेंस नहीं किया, लर्निंग नहीं की, बल्कि कोई और मोटिवेशन कहीं से और मिली कि ग्राफिकल डिजाइनिंग अच्छी है तो आपने उसको चूज कर दिया। इसी तरह से ऑन द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी आई ऑल्सो यूज टू डू दीज ऑल थिंग्स ना, कि थोड़ी सी कहीं से मोटिवेशन मिली, कोई सेशन लिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग, सो दैट्स वाई मैं सेशन लिया करती थी और मोटिवेशन जो है वो एक्सेप्ट किया करती थी, और जहाँ पे स्टक होते थे फिर वहां से उसको स्विच करके कहीं और चले जाते थे। तो फोकस ऑन योर स्किल्स, फोकस ऑन योर पर्सनालिटी, कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है। और सारी मोटिवेशनल स्पीकर्स एक बात कहते हैं कि जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, उसी को आप प्रोफेशनल बना लें तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो इसमें एक चीज मैं यहाँ पे वैल्यू ये ऐड करना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो अपना करियर बनाना चाहिए वो देखना चाहिए कि ट्रेंडिंग में चीजें क्या चल रही हैं, या फिर जिस जिस चीज का दौर है, जिस चीज का इरा चल रहा है। दिस इज द इरा ऑफ 2026, अ वेरी मॉडर्न टाइम, 2026 एआई इरा। तो इससे रेलेवेंट वी शुड हैव टू पॉलिश आवर स्किल्स और उस पर काम करना चाहिए। एक वन ऑफ माय बेस्ट मेंटोर, द नेम इज इरफान मलिक, and he is a founder of Seven Solution. So once he told me something that he is very interested to be a cricketer. ठीक है, सो क्रिकेट में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अब वो जो है वो एक टेक कंपनी के सीईओ हैं। सो वो चीज कहाँ तक, कहाँ से कहाँ ले आती है कि आपकी हॉबी क्रिकेटर थी, एंड ही टोल्ड कि अगर मैं अपनी हॉबी के साथ लेके चलता तो आज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ ना बनता। सो वी शुड हैव टू टेक द थिंग जो कि आजकल चल रही है और वो ट्रेंडिंग में है, और आप उसको सीख कर उससे बेनिफिट ले सकते हो। सो दैट्स थिंग वी कैन डू। और हमारे पास जो है वो मैम आयशा भी आ चुकी हैं, और मैम आप भी इसको आंसर कीजिएगा कि इसको और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अपने फील्ड्स को बार बार स्विच करते हैं, तो और उस सर्कल से वो निकल नहीं पाते और किसी एक फील्ड में बेस्ट नहीं हो पाते, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्या रिमार्क्स हैं? ओके, आप मुझे ना इन डिटेल बता सकती हैं कि आपकी स्किल कौन सी है? लाइक आप बिजनेस से रिलेटेड पूछ रही हैं या आप अपनी डिजिटल स्किल्स पूछ रही हैं, लाइक कैनवा या वीडियो एडिटिंग, या फिर जो बिजनेस से रिलेटेड आपकी स्किल की बात करें कि आपको उसमें कन्फ्यूजन हो रही है या आप उसमें कंफ्यूज हैं, वो बताएं। जी आयशा, आपका माइक जो है वो म्यूट है और आपका बैकग्राउंड भी बहुत नॉइजी है, तो आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। सही, प्लीज ओपन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज, please raise your hands for to asking the questions.
जी, हमारे पास जो है वो एक मोबाइल फ़ोन के नेम से एक कैंडिडेट है, द नेम इज़ वीवो Y21A। तो आप जो है वो म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट, एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम आप जो लोग जॉइन होंगे विद योर नेम। यस प्लीज़। जी, आर यू देयर? हू रेज़्ड द हैंड? Okay, so champions, let's the thanks to all of you for this incredible insights and joining this session. And now we'd like to call the very incredible leader, the very young leader. The name is Miss Sayyeda Komal Rizvi and is an English communication mentor with a more than 6 years of experience helping learners speak confidently. And through her platform, English with Komal, she has guided 100 plus students to communicate clearly and overcome hesitation. Yes, ma'am, over to you for the thanks word. Assalamu alaikum. Am I audible, Muniza? Yes, Komal, you are. Okay, thank you. Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing great and fantastic. I'm Sayeda Komal Rizvi, founder of English with Komal. बेसिकली सारे स्पीकर्स ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एलैबोरेट करा है। मैं जस्ट एक ही पॉइंट पे बात करूँगी, जो हमारा सेशन भी जिससे रिलेटेड है, इट इज़ अबाउट लीडरशिप। कि आप लीडरशिप को किस तरीके से देखते हैं एंड हाउ यू जस्ट गोना डू वर्क फॉर दैट। एंड अभी एक स्पीकर थी, उन्होंने मेंशन भी किया ये बात कि अगर आप एक लीडर हैं तो ये नहीं कि खाली आप खुद अब वर्क करें, आपको अपनी पूरी एक टीम को लेके भी चलना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने भी मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कि जब आप खुद एज अ लीड काम कर रहे हो, जैसे आप माशाल्लाह से मुनीज़ा भी कर रही हैं, सारी चीज़ें देखती हैं, तो खाली हम खुद अपने ऊपर वर्क नहीं करते या खुद को खाली आगे नहीं लाते। वी आर जस्ट गोना वर्क फॉर आवर होल टीम एज वेल। वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जब भी आप एज ए लीडर काम कर रहे हो चीज़ों को, तो आप अपनी टीम को भी मोटिवेट करके चलो और उनको भी चांस दो, तो ये कि वो भी बहुत सारी चीज़ें उससे सीखेंगे। अनदर थिंग जो हमने डे 1 में भी सीखा एंड डे 2 में भी सीखा, तो वो ये है कि अबाउट कॉन्फिडेंस, कि गर्ल्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप अपना ड्रीम कोई सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू फुलफिल दैट योर ड्रीम एंड नॉट जस्ट अबाउट सेइंग कि मुझे अपना ड्रीम को पूरा करना है। यू हैव टू वर्क फॉर योर ड्रीम एज वेल। बिकॉज बोलना चीज़ों को बहुत ईजी होता है, बट व्हेन इट्स कम टू अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, सो वो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही स्टार्ट हर कोई कर सकता है, बट चीज़ों को एंड तक ले जाना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। बट आपने जो भी ड्रीम्स अपने सेलेक्ट करे हैं, कोई भी गोल आपका है जो आपको पसंद है, जैसे अभी एक स्पीकर यहाँ पे यही बता रही थी कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप उसको फुलफिल करो, अपनी स्किल को, गोल को पहचानो। और एज अ स्टूडेंट मेरे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि मैम हमें ये चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि हमें अपने गोल पता नहीं चल पाते कि हम क्या करें आगे। एंड इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, मैं थोड़ा-सा गाइड कर देती हूँ। अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे पहली चीज़ तो एक वो चीज़ जो आपको करना पसंद है, एंड दूसरी चीज़ ये कि सोसाइटी क्या माँग रही है। पहली चीज़ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी ऐसी चीज़ पसंद है, बट आप शौक के लिए कर रहे हो, तो शौक के लिए करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप उसको प्रोफेशनल अपने करियर में ला रहे हो, दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग। फॉर एग्जाम्पल अबाउट माई सेल्फ, जैसे अब मेरी जो स्किल है वो है, इट इज़ अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, बट माई प्रोफेशनल करियर इट इज़ अबाउट कंप्यूटर साइंस। So there are a lot of people those who are saying that why you are just doing computer science, you have skills on English speaking, why you are just not gonna for BS English. But I'm just saying that English is just like my skill, ये एक मेरी स्किल है, बट प्रोफेशनल कैरियर मुझे अपना आईटी में आगे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आज की सोसाइटी आईटी मांगती है। आजकल का जो एरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बिकॉज गर्ल्स को पता नहीं होता किस चीज़ की, किस लाइक सब्जेक्ट की, किस फील्ड की आजकल डिमांड है, एंड वो ये सोच के ले लेती हैं कि हमें इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वी आर जस्ट गोना परसू आवर करियर इन दैट। बट जब वो फिर अपना ग्रेजुएशन कर लेती हैं,
तो फिर वो सोचते हैं कि काश कोई हमें होता गाइड करने वाला। तो अपना करियर बहुत सोच समझ के चूज़ करें। आपकी जो भी फील्ड है, अगर आपको कोई चीज़ करना पसंद है, जैसे आप कोई स्मॉल बिज़नेस अपना स्टार्ट करेंगे, छोटे से छोटा या कोई बड़ा बिज़नेस भी हो, मोस्टली गर्ल्स बिजनेस वगैरह करती है, तो वो आप अपने शौक के लिए एज अ साइड हॉबी के तौर पे लें, ताकि आप ये भी करते रहें साथ साथ, आपका इंटरेस्ट भी होता रहे। एंड सेकेंडली अबाउट योर करियर एज वेल, एंड करियर में आप वो चीज़ को आगे परस्यू करें जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो आप अपना करियर खुद चूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोगों से जितना सजेशन लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको मज़ीद और कन्फ्यूज़ कर देंगे। आपने जो सोचा आप उसको करके भी दिखाओ। जैसे आजकल की सोसाइटी एआई की है, फिर भी अगर आप किसी को बोलोगे ना कि मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ एज़ अ गर्ल, तो लोग बोलेंगे भाई ये तो लड़कों वाली फील्ड है। लिटरली मैंने ये चीज़ भी सुनी हुई है। लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं आपने तो लड़कों वाली फील्ड ले ली है, इंजीनियरिंग करेंगे आप लड़कियों के, लड़कियां तो डॉक्टर बनती हैं। एंड आई वाज बी लाइक कि फील्ड की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई भी फील्ड आपकी ऐसी नहीं है जिसमें कोई लिमिटेशंस हो। लड़कियां जहाज तक उड़ा रही हैं, नॉट जस्ट अबाउट के खाली मैन कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस तरीके के जब आपको कमेंट्स फेस करने को मिलते हैं ना, तो मोस्टली गर्ल्स डिसहार्ट हो जाती हैं, बोलती हैं कि भाई सही कह रहे हैं, शायद ये मैं नहीं कर पाऊँ। बट आपको सोचना नहीं, आपको यूनिक बनना है। आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद जो है ना, एक ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको बाकी गर्ल्स से खुद को यूनिक बनाना है। वो आप किस तरीके से बना सकती हैं, अपनी स्किल्स को देख के बना सकती हैं। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। अल्लाह ताला ने हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल रखी है जो हमें खुद भी कभी-कभार पता नहीं चल पाती, और हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम में शायद कोई स्किल नहीं है, मुझे तो हर चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है। बट जब आप चीज़ों को वर्क करेंगी ना, हर चीज़ को एंजॉय करें। जैसे अगर आप कंफ्यूज हो रही हैं अपने करियर को लेके, या आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा किसी चीज़ में, आपको लगता है हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगी आप, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। बिकॉज मुझे भी ये चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं किस चीज़ में आगे जाऊँ, हर चीज़ में तो मेरा इंटरेस्ट आ जाता है। कभी किसी से सुनती हूँ इस चीज़ के बारे में, तो इसमें इंटरेस्ट आ जाता है, कभी किसी चीज़ के बारे में सुनती हूँ, तो मैंने हर चीज़ को एक्सप्लोर करा, पढ़ा उस चीज़ के बारे में। आजकल एआई टूल्स हमारे पास हैं, हम नॉलेज हर जगह से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं। फिर देखने के बाद फिर मुझे पता चला अच्छा ये चीज़ की वैल्यू है, मुझे ये करना चाहिए। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं कि उनकी आपके अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं होता, बट सोसाइटी डिमांड करती है, तो आपको वो करना पड़ता है। जो आपको चीज़ पसंद है उसको भी लेके चलते रहो, और जो आपका करियर है मस्ट गो विद दैट। बिकॉज़ को आपको नहीं पता, कभी भी कोई भी वक़्त आ सकता है। तो वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो फ़ख्र से बोल सके कि मैं ये कर रही हूँ। जब आप बताएँगी ना अपने स्किल के बारे में खुद से, या लोग बताएँगे कि भई शी इज़ डूइंग दिस थिंग, आपको खुद फ़ख्र महसूस होगा। जो बाकी गर्ल्स का गोल है, आप डिफरेंट गोल रखें अपना, खुद को यूनिक बनाएँ। कोई ना कोई आपके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए जिससे लोग आपको जानें, आपको पहचानें कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक ही गोल है कि मुझे खुद को लोगों से या दूसरी गर्ल्स से यूनिक बनाना है। लोग हमेशा एक ही बात को फॉलो करते हैं कि भाई पढ़ो, मोस्टली गर्ल्स का यही होता है कि बस पढ़ो, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, दैट्स फाइन, नाउ यू हैव टू गेट मैरिड। लाइक इट्स नॉट अबाउट लाइफ। मैरिज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट लाइफ। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल। वरना किसी जमाने में आप यही सोचते रहेंगे कि यार वो वक्त था मेरे पास, काश मैं उस टाइम कुछ कर लेती। तो फिर ये चीजें आती है, बिकॉज आप अपने साथ पूरी जनरेशन को लेके चलते हो। अगर आप एजुकेटेड हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप और लोगों को भी सिखाते हो, और ये सदका जारिया है कि जो आप सीखो वो दूसरों को भी सिखाओ। उसके लिए खुद सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्किल, जैसे हमारे ये सेशंस हो रहे हैं विमेन वीक के, ये जो सेशंस नहीं है, इनमें कोई ना कोई ऐसी बात इसको पिक करें कि आप इससे अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ, चीज़ों को लेके आगे चलें। बिकॉज़ सुनना बहुत ईज़ी होता है, अगर आप इन सेशंस से एक भी कोई बात सीखते हैं और खुद को अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेशंस को जॉइन करना एंड गेटिंग द सर्टिफिकेट, ये एक चीज़ नहीं होती। सेशन से कुछ सीखना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप किसी से कोई भी बात सुन रहे हो, तो वो अच्छी बात है आप सुन रहे हो, बट उस बात का फ़ायदा ही तब होता है जब आप अपनी ज़िंदगी में उस बात का इम्प्लीमेंटेशन लेकर आओ। इफ़ यू आर जस्ट लिसनिंग अबाउट लीडरशिप, इफ़ यू आर लिसनिंग अबाउट के वुमेन को स्ट्रांग होना चाहिए, सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट।
सो थैंक यू इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि काफ़ी गर्ल्स ने सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी एंड अबाउट आर रिस्पेक्टेड स्पीकर्स जिन्होंने बहुत बेहतरीन पॉइंट्स दिए, हम लोगों को सिखाया एंड होप सो स्टूडेंट्स आप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड थैंक यू फॉर आर कोलैबोरेटर्स जो 2 दिन हमारे साथ रहे, मुस्तकिल हमें सपोर्ट करा एंड स्पेशली थैंक यू सो मच मुनीज़ा माशाल्लाह से जिन्होंने सारी चीज़ों को देखा एंड इंशाल्लाह हमारे साथ कनेक्ट रहे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ms. Sayyida Komal Rizvi, for your stunning insight. As we conclude day 2 at the final session of our Women Day series, we are grateful for the inspiring stories, insights, and guidance shared by our amazing speakers. These sessions have been full of motivation, learning, and empowerment, and leaving a long lasting impact on all of us. A heartfelt thank you to our speakers, partners, and participants again for making this series truly memorable. And stay inspired, stay learning, and keep leading with us. And I hope so you all learn about the things very well. If I am talking about starting, maybe हमने आपको बताया according to the institute that we are to be that kind of to be empower the youth and the women on this platform to be launching the 15 plus programs to make yourself so incredible, capable, and skilled. So if you are interested, you may join us. And if you want to be become the part of Easy Learning Online Institute, you may become and you may connect with us. And if you have any kind of skills, आपकी speaking अच्छी है, आप लीडिंग में अच्छे हैं, आपको ग्राफिक्स आते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप सोशल मीडिया बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं, आप किसी भी स्किल में हैं, you can connect with us, you can join our virtual internship program and hope for the best. Thank you everyone for joining us. Allah Hafiz.